नमस्कार। मनी 9 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। वेलकम टू मनी 9। हम बजट से केवल कुछ घंटे दूर हैं और अब हमें बजट की उम्मीदों और बजट के ख्वाबों की चर्चा को एक दूसरे स्तर पर ले जाना है। मनी 9 आपके पास लेकर आया है एक विशेषज्ञों का पैनल, जिनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से उनके ख्वाब क्या हैं, बजट से उनकी ज़रूरतें क्या हैं। मेरे साथ हैं मेरे को एंकर कृष्ण कुमार। Thank you, Mr. Anshuman Tiwari. Thank you, Anshuman ji. And this is a very special discussion here on TV9 Digital because, like every year, this year the budget comes with so many hopes and expectations attached with it. And we're trying to understand, even as we approach this all-important budget, what it can do, what it can do for us, the common man, what it can do for India Inc., what it can do for the Indian economy. All of it will be discussed going forward. And I will be bringing in the English end of this discussion, while Anshuman ji will give us all the wonderful information in Shuddh Hindi. And we have with us a very special panel of people joining us on this discussion. We have with us Mr. Shashi Sinha, who is the CEO India of IPG Media Brands. Mr. Shashi Sinha, thank you so much for joining us on this discussion. We also have with us Mr. Sandeep Sharma, who is President RK Swami Media Group, joining us on this discussion. Thank you, Sandeep, for being with us. And we also have Mr. Mohit Joshi, CEO of Havas Media, joining us on this discussion. And we are going to be taking this discussion in a way where we're going to be splitting this up into essentially about 3 to 4 big questions that stare at us as we approach this budget 2022. To begin with the first point of this particular discussion, of this particular roundtable, I'm going to hand it over to Mr. Anshuman Tiwari. Anshuman ji, हम यही बात कर रहे थे ना, going ahead for this budget, Corona and the future of how Corona is going to go away. That is one thing on our heads. But how has the government handled Corona is one thing, and how the government has handled the economy during the Corona pandemic is another thing, isn't it? Yeah, that's it. Welcome, Mr. Sinha, Mr. Sharma, and Mr. Joshi. Yeah. Since we have got a very stellar panel here, we must start with since we have got a stellar panel here, we should start this discussion with the understanding that how India has handled its economy in last 2 years. India has handled pandemic quite well, given the situations and constraints India has in the health sector. But सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में ये है इस समय कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस मंदी के दौरान कैसे मैनेज किया, कैसे उसको हैंडल किया. So we'll open this discussion with this first segment, India's handling of a COVID hit economy during last 2 years. That's right. Shashi Sinha, I'm going to start with you. Talk to us, if that was the question. India has handled the pandemic very well, as Anshuman ji has just told us. How has the Indian economy handled the impact of this, once in a lifetime, so to speak, of a pandemic? How do you think it's been handled? So, Krishna, I'll also answer in English and Hindi since both of you are there. So, I think at a macro level, it looks very rosy because, as you see, there is IMF estimate is there. Growth aayegi, which is very good. I mean, probably the fastest growing economy in the world. So that's the big picture. I mean, and that makes you feel very happy and proud that the future looks rosy. But इसमें कुछ अगर आप छीनेंगे तो 2-3 इसमें तकलीफें हैं. एक तो जो मेरा मानना है कि गरीबों में और मध्यम वर्ग में ये जो महंगाई हुई है, इसका तकलीफ आएगी अगर इसको ठीक से बजट में नहीं देखा गया तो इसकी तकलीफ आ सकती है. और दूसरी बेरोजगारी, जो गरीब लोग हैं वो और गरीब हो गए हैं. तो ये दो चीजें जो समस्या हैं जो हमारे सामने जो इन आंकड़ों के नीचे छिपी हुई हैं, we have to take care of this. This is something which we have to watch out for. I have a question for you, sir. How do you see handling of Indian economy at the state level? We have seen a lot of initiative taken by the central government in terms of Atmanirbhar Abhiyan and others. How do you see that states play a very important role in Indian economy at the bottom level? राज्य सरकारों ने कैसा काम किया और उनका इनिशिएटिव कैसा रहा, पहला सवाल. और दूसरा सवाल आपसे ये कि ऑल दिस 20 लाख करोड़ रुपीस आत्मनिर्भर पैकेज, हाउ मच इट हैज एक्चुअली एडेड इनटू द recovery of the economy in last 2 years? I think then we'll go with the second guest on the same question. Yes. Yeah. तो इसके दो पहलू है. पहला तो डेफिनेटली हर एक स्टेट ने अपना अलग किया है, पर ये मानना पड़ेगा कि हमारे जो इक्वेशन है उसमें अब सेंटर का रोल ज्यादा हो गया है, तो स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन पर रहता है. एंड डिफरेंट स्टेट्स हैव डन डिफरेंट थिंग्स. जो हमारी स्टेट महाराष्ट्र काफी अच्छा हुआ है, इसमें यहाँ पर इतनी तकलीफ नहीं है. लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि
I can't generalize. It is very individualist. But the larger point is that it has become very central. I mean, the whole thinking, the way the implementation happens, and it is centrally driven even in terms of implementation to one point, which you're saying. And definitely your second question, if I recollect, was in the area of कि इसका क्या फायदा हुआ है. फायदा डेफिनेटली जो आप देखिए रिकवरी हुई है हमारे. जब वेव 2 आई थी तो अप्रैल मई में इतनी दहशत मच गई थी, सब चीजें बंद हो गई थी. लेकिन आप अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर के आंकड़े देखें तो ओवरऑल लेवल, जो मैं आपको पहले बोला था कि ओवरऑल लेवल नंबर बहुत अच्छा आ रहे हैं. अब जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना रिजल्ट निकाला है थर्ड क्वार्टर का, जो के लिए जो अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, प्रॉफिट बढ़ गया 17%. लेकिन उनके पीछे जो बड़े नंबर के पीछे कहानी छुपी हुई है, जो मैंने आपको बताया, रूरल ग्रोथ नहीं आई है, रूरल बिल्कुल फ्लैट है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइसें बढ़ रही हैं, तो इसकी वजह से दाम बढ़ने से खरीदारी कम हो रही है, तो वैल्यू बढ़ रही है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रही. ये सब थोड़े थोड़े ट्रिकी साइन है, इसको ध्यान रखना चाहिए सरकार को. Shashi Sinha is extremely cautious about all these big numbers, the बड़े आंकड़े जिनके बारे में बात कर रहे हैं. We have to be cautious about it. Yes. Even as we're being optimistic with those numbers. And now let's take this across to other guests who are joining us. Let's take this across to Sandeep Sharma, who is also with us. So Sandeep Sharma, do you concur with what Shashi's take is on how India has the Indian economy has been handled during the pandemic? Yeah, so both the questions I'll try and capture together. So, when the pandemic hit us 2 years back, it was a state of shock. People didn't really know whether it was the government or the individual or families, what has hit us. I mean, this generation has been good not to have seen any of these big level adversity. So it took us some time, everybody got their act, but luckily the booster and the vaccination bit, once it started, I think India has delivered well on that, whether it is at the center or the state. This really has helped. On the economic front, initially, yes, there was a gloom, doom, a lot of despair, there was panic, and all those issues were there. But Indians are very, very adaptable. So the smarter ones really got going saying, okay, what do we do? So the industries really took this opportunity to cut cost. इन्होंने अपने talent को improve किया, manpower को restructure किया, technology को adopt किया. सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने ये देखा है कि भाई अब आगे चल के ये जो कोविड है इसके साथ जीना पड़ेगा. COVID is not going to go away, so we'll have to find a way where we coexist and do business along with COVID coming and going. So I think that is something that people have now understood well, which we are seeing in this current state. जहाँ काम भी चल रहा है और Omicron का भी is being managed also well. So a lot of people have boosted their profitability because they become leaner, meaner, efficient. They've built in good processes और restructure किया है companies को. Also गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बजट निकाला था लास्ट ईयर, जिससे कि कोशिश की थी उन्होंने कि कुछ डिमांड को किस तरह से प्रोत्साहित दिया जाए. तो कंजम्पशन तो अपने हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने पॉलिसीज निकाली जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दे हैव रिलीज मनी इन द मार्केट, हेल्प किया है सेक्टर्स को जहाँ पे देयर वाज लॉट ऑफ इशू. सो दैट हैज हैपेंड. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट unless the consumption and the the growth revival happens, the demand revival, iska fayda nahi hoga. So I agree with Shashi that yes, at one level the rich have become richer, but among them the smarter ones, the ones who had a staying power, jiske paas cushion tha, they after the initial shock have recovered fast and have actually, many industries and people have actually prospered in this adversity. Lekin what we forget, staying in a Bombay, Delhi, is that India is far bigger, and when you go to the tier 2, tier 3 cities or to the rural part of the country, there is really a lot of strife there. And somehow there has been a huge increase in cost across metals, across everything. So that has a cascading effect when it comes to a poor person being able to afford things. हर चीज महंगी हुई है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ा है. तो ये आगे चल के अब गवर्नमेंट को आगे चल के ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये बड़ा क्रिटिकल है इस बजट में. एक तरफ से डिमांड को इंक्रीज किया जाए, बट दूसरी तरफ से ये जो पुअर सेक्शन है और जो कैटेगरीज हैं जो अफेक्ट हुई हैं इससे, उसको कैसे अब उभारा जाए ताकि थोड़ी पैरिटी आए कंट्री के अंदर. तो यूनिफॉर्म ग्रोथ जिसको बोलते हैं अक्रॉस ऑल कैटेगरीज एंड सेक्टर्स, दैट आई थिंक बैलेंसिंग एक्ट इज नाउ की फॉर द गवर्नमेंट.
Yeah, Krishna, I think let's patch with Mohit also. Yes. Also with a question, then Yeah. we'll go to the next segment of Yes. this discussion, which is much more granular towards the understanding the whole matrix we're of still at the economy. macro level In the we'll macro discuss. level. Yeah. My question would be for Mohit is that इंडिया हैज़ गिवन अप से 20 लाख करोड़ रुपीस आत्मनिर्भर पैकेज, जिसके बारे में ये बार बार कहा गया है कि वो क्रेडिट ड्रिवन पैकेज था. अनलाइक अदर कंट्रीज इन द वेस्ट, गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन डायरेक्ट बेनिफिट्स इन टू द हैंड्स ऑफ द पीपल हु हैव सफर्ड फ्रॉम कोविड crisis and recession. How do you see this whole divergence of handling COVID economy vis-a-vis Western countries and other Eastern countries in India? As you rightly said, sir, it was there are different ways in which you can assess the way government managed this entire process. Before I come to that question, I want to just add to whatever Shashi sir and Sandeep ji said. While we are very resilient, Indians बहुत resilient हैं, and हम लोग अपनी किसी भी problem से बहुत जल्दी उभर के बाहर आते हैं. But the biggest thing that last 2 years have shown us is the importance of healthcare, जो किसी ने आज तक इतनी importance नहीं दी थी इस sector को. And we also saw जब हालांकि बहुत अच्छा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ने मैनेज किया इस प्रोसेस को, बट सेकेंड वेव में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स भी किया. सो दैट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो हमको आगे अपने इस ईयर के बजट में लेके जानी चाहिए. द हेल्थ केयर focus on healthcare has to significantly go up to the extent to which it happens in the Western countries. हमारे यहाँ healthcare and research is not given so much of an importance the way it is given in the West, and that's something जो मुझे लगता है आने वाले बजट में हमें बहुत केयरफुली इस चीज को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई कि हेल्थ केयर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. हम अगर बचे रहेंगे तभी हम इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकेंगे, एंड दिस पैंडेमिक क्लियरली टोल्ड अस अबाउट दैट. Right. So that was the first set of discussions that we're having as we run up to this budget 2022. अंशुमन जी जो कह रहे हैं कि मैक्रो बातें हो गई हैं, अभी ग्रैन्युलर बातों पे जाएंगे. तो how do you think this should progress? Now we've addressed how India as a country has handled its economy during the pandemic. Now the questions are all about boosting consumption. So even in the first set of the discussion, everybody the talk is all about boosting consumption, and what can budget 2022 do to do that? I think let's ask with the Mohit first. Yes. First, that why India's consumption story is not kicking back. What is the reason why India's consumption story is still lagging while the other countries we have seen that? This is one question, and second is that we are seeing a very serious divergence among the consumption patterns of the India post COVID. The consumption habits has been changed. A lot of people have been seems to be left out from the consumption profile. बहुत सारा मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग पूरी की पूरी कंजम्पशन प्रोफाइल से बाहर हो गया है, कंजम्पशन ऊपर के हिस्से में केंद्रित हो गया है. एंड सिंस यू ऑल थ्री रिलेटेड टू द डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंजम्पशन पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज एवरीथिंग रिलेटेड टू द मीडिया स्पेंडिंग गोज डायरेक्टली फ्रॉम द कंजम्पशन. ऐसा क्या हुआ कि भारत की पूरी हैंडलिंग में कंजम्पशन की स्टोरी को उस तरीके का बूस्ट नहीं मिला जैसा कि हमने बाकी चीजों को देखा? सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस द कंज्यूमर्स हैव बीन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. आज भी अगर आप कंज्यूमर से पूछेंगे कि आप पैसा खर्च करोगे कि नहीं करोगे, दे थिंक 10 times, बिकॉज ऑफ विच एन एवरेज कंज्यूमर आई एम टॉकिंग अबाउट. आपने खुद बोला कि डाइवर्जेंस है, जो और शशि सर ने और संदीप जी ने भी बोला कि जो रिच थे दे बिकेम रिचर, राइट? समवेयर दे वर एबल टू अफोर्ड, एंड दैट्स व्हाई लग्जरी कार सेल्स हैव सिग्निफिकेंटली गॉन अप ड्यूरिंग दिस पीरियड, व्हिच इज काउंटर इंट्यूटिव. लेकिन अगर एवरेज कंज्यूमर को आप देखोगे, उस एवरेज कंज्यूमर को ये नहीं पता था कि कल whether I will be in a good state of health or not, whether whether I will have my job or not. और इन किस्म के क्वेश्चंस की वजह से वो बहुत कॉशियस था. वो क्वेश्चन जो था उसके स्पेंडिंग पैटर्न में आ रहा था. अगर मुझे कार लेनी है, मैं अगले साल तक रुकता हूं. अगर मुझे घर बदलना है, मैं अगले साल तक रुकता हूं. इवन ऑन रेगुलर कंजम्पशन आपने अपनी नीड्स और वांट्स को जो है डिफाइन कर लिया था. एंड हम लोग कह रहे थे जिस समय पैंडेमिक शुरू हुआ था, हमें पहली बार पता चला, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है नीड्स और वांट्स क्या होती हैं, लेकिन कंज्यूमर ने अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज किया. एंड व्हेन आई से कंज्यूमर, मैं
मध्यम कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, जो उसने अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज किया और इंश्योर किया कि मेरे को नीड्स अपनी मैनेज हो रही हैं, लेकिन वांट्स को उसने जो है पुश किया। और यही जो चीज थी, ये हर सेक्टर में हुई है, बिकॉज ऑफ विच आर आई वुड से the spending story has not been the way it has been in other countries. जिस समय the first wave came down, there was revenge spending. We saw categories like cars and many other categories saw revenge spending, लेकिन वो transient थी। एक दो महीने बाद we started seeing the impact and it went back into a slow burn again. So in my view, there was a lot of uncertainty which was associated with these the pandemic times, and because the consumer was not sure about his or her health, his or her job, his or her future, and also about savings, because the way the markets were moving around, he was not sure whether he should be spending today. आज उसको खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो केवल अपने कोर एरियाज में जो उसकी नीड्स थी उसमें स्पेंड कर रहा था, और जो वांट्स थी या जो ब्रॉडर स्पेंड्स थे उनको वो डिले कर रहा था। Right. Anshuman ji, they say one of the best ways of boosting consumption in an economy is to give incentives to the salaried class. That's one of the best ways of boosting consumption. I'm going to ask this to our panelists to see if that's something that Nirmala Sitharaman would be considering in the upcoming budget. Shashi, if I can come to you on that, what is your take on it? Boosting consumption is an imperative, is a prerogative for the Indian government at this stage. Do you think the salaried class in that sense can hope for some incentives on that front? आई वुड लाइक टू एड वन क्वेश्चन। एक शशि जी के साथ इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल और है जिससे मुझे लगता है पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। अभी मोहित ने कहा कि जो लग्जरी कार्स की डिमांड थी वो इस दौरान बढ़ी, पर आप देखें टू व्हीलर सेल्स जो इंडिया का पल्स है, जहां से इंडिया का मैक्सिमम डिमांड आता है, रूरल कंजम्पशन की स्टोरी जो पहले कोविड के फेज के दौरान थोड़ी बेटर दिखाई दे रही थी, सेकेंड फेज के बाद स्लो डाउन हो गई। शशि जी, आपका टेक क्या है? वाई इंडियाज रूरल कंजम्पशन विच हैज एक्चुअली सपोर्टेड इंडिया टू रिकवर फ्रॉम द फर्स्ट फेज हैज स्टार्टेड लैगिंग इन द नेक्स्ट फेज? ऐसा क्या हुआ कि रूरल कंजम्पशन का स्लो डाउन आया बजट के कॉन्टेक्स्ट में? ये अगर हम आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट देखें, आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल के रिजल्ट देखें, सारी एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट देखें, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन का स्लो डाउन पहले अर्बन मार्केट में था वो अब ट्रिकल डाउन करके रूरल मार्केट में गया है। ये ऐसा फिनोमेना क्यों दिखाई देता है? तो आयुष्मान जी, ये मैं पहले आंसर करूंगा, फिर मैं, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं और कृष्णा का क्वेश्चन बाद में। तो पहला जो मैंने पहले सवाल किया कि देखिए इंडिया की इकोनॉमी में जो संदीप ने बोला कि जो ऑर्गेनाइज कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर को छोटा है लेकिन वो बड़ा, उसमें प्रॉफिट हुआ है, टैक्स भी कम किया था, 25% टैक्स कर दिया था 2 साल पहले, और वहां ग्रोथ आई है, रिचर बिकम रिचर, कंपनीज में भी हुआ है ये। लेकिन पूरा इंडिया का जो गढ़ है वो अनऑर्गेनाइज का है, और अनऑर्गेनाइज में चाहे एसएमई हो, जो छोटी कंपनी हो, इसमें बहुत तकलीफें आई हैं। और उसकी वजह से जो मैंने शुरू में बोला था, एक तो समस्या आई है बहुत बड़ी, जो बेरोजगारी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। ये मानना पड़ेगा कि काफी इंडिया में सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट आज से 20 साल में आज की तारीख में है, पहली बात। दूसरी बात, जो ग्लोबल फिनोमेना है, क्योंकि जब कॉस्ट बढ़ गई, सब इनपुट कॉस्ट है, तो इन्फ्लेशन हुआ है। इन दोनों की वजह से बहुत तकलीफ है मध्यम वर्ग में, और मध्यम वर्ग से ज्यादा गरीबों में। और मेरा मानना इसका तरीका यही है, जो आपने पहले सवाल किया था वो बहुत अच्छा सवाल था, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको आंसर करने की, कि जो क्रेडिट से कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना चाहिए। मेरा मानना ये टाइम आ गया है कि गरीबों के लिए, और चाहे वो रूरल इंडिया में रहते हैं, रूरल इंडिया में फिर भी बहुत फायदे हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, मनरेगा है, लेकिन अर्बन इंडिया में जो मध्यम वर्ग के या जो गरीब है उनके लिए कुछ करना चाहिए, और उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे वो फूड स्कीम हो, चाहे जो भी हो, मनरेगा का इक्विवेलेंट निकालें, वो टाइम आ गया है। सैलरी क्लास, हम लोग चाहेंगे कि हमारे टैक्स कम हो, लेकिन हमारा नंबर बाद में आता है। पहले मेरा मानना है, क्योंकि इस समय चिंताजनक सिचुएशन है, क्योंकि वो जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि ओवरऑल नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसको अगर आप सेगमेंट करें और आंकड़े देखें तो तकलीफ है। ये टाइम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। Sandeep, if we can take that over to you, would you also agree it's a time for direct benefit transfer? Yeah, see what has happened. The fiscal rescue package that was given, while it looks very big, it is 3% of GDP. But if you compare with the world, emerging markets was 4% of GDP. China had 5% of GDP. The advanced economies actually ended up giving 10% of their GDP. So now the government needs to really step up on this. The second part is that 3% of GDP also is a very large amount.
बट ये गरीबों में, मिडिल क्लास, लोअर क्लास के हाथ में नहीं गया है, यू नो। तो उससे क्या, जैसे अभी अब कुछ दिन पहले हमने पढ़ा पेपर में, इतना गोल्ड प्लेज हुआ है इमरजेंसी लोन, और ये मिडिल क्लास, गरीब लोग, लोअर क्लास ने इतना गोल्ड प्लेज करके लोन उठाए हैं, क्योंकि वो कैसे अपना काम चलाएंगे। तो अब इनके बारे में रियली सोचना चाहिए, आई मीन सैलरीड क्लास को आप टैक्स थोड़ा कम करोगे, रिजिक करोगे, वो ठीक है। इस टाइम अपने को फोकस लेना चाहिए कि भाई ये जो अपना लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया है, जो भारत है अपना, और ये एक गलत फहमी है कि रूरल इंडिया में ही पुअर रहते हैं, पुअर अर्बन में बहुत ज्यादा है, बॉम्बे जैसी शहर में बहुत ज्यादा है। तो इन सब के लिए अब कैसे गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इनके हाथ में पैसा दिया जाए, जिससे कि ये कंजम्पशन फिर ही बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो ही वो खर्चा करेंगे ना। सो दिस इज व्हाट द बिग बर्निंग इशू इज, क्योंकि ये होने से फिर आपकी इकोनॉमी किक स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल हो रहा है, कंपनीज ने अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर लिया है, द स्टॉक मार्केट में जो लोग थे उनको बेनिफिट हुआ है, बिकॉज फॉर्चुनेटली ये सारा एडवर्सिटी में द मार्केट्स हैव बीन वेरी बॉयंट। तो लास्ट 1 साल 2 साल में जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, वो वर्ग को काफी कुशन मिला है, बट दैट इज वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ऑडियंस, Right. Anshuman ji, do you think it's time now that we push this forward, this discussion forward, and talk about wish list? Every budget के पहले हर एक के पास एक विश लिस्ट होता है, कॉर्पोरेट्स के पास एक विश लिस्ट होता है, कॉमन मैन के पास एक विश लिस्ट होता है. वी हैव आवर वंडरफुल पैनलिस्ट्स सिटिंग, सो लेट्स गो अराउंड आवर पैनल, आस्क देम व्हाट अ विश लिस्ट. इफ आई कैन आस्क यू, इफ यू हैड अ विश लिस्ट, व्हाट वुड बी ऑन टॉप ऑफ योर विश लिस्ट? मुझे लगता है कि हम पहले अपने पैनल से पूछें. Wonderful, let's do that. इम्पॉर्टेंट ये है कि हर बजट के साथ कुछ विश लिस्ट होती है कृष्णा, और हर बजट का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है. पर इस बजट का कॉन्टेक्स्ट है बड़ा मेल्टडाउन इंडियन इकोनॉमी में, एक कोविड का रिसेशन, और इसके बीच के 2 बजट्स. तो मुझे लगता है कि सवाल हम कुछ इस तरह से पूछें. अगर मैं पहले शशि सर के पास जाऊं और पूछूं कि 2 टेंजिबल थिंग्स. एक तो विश लिस्ट बहुत बड़ी होती है, हम सब कुछ चाहते हैं कि वित्त मंत्री हमको चांतारे तोड़ के दे दे, भले ही फिस्कल डेफिसिट कितना हो. तो वो तो एक डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस है. आपको ऐसा क्या लगता है कि 2 टेंजिबल थिंग्स जो डूएबल है, स्पेसिफिकली इस बजट में वित्त मंत्री कर सकती हैं या उन्हें करना चाहिए, बिकॉज यू नो व्हाट आर द कॉन्स्टेंट शी हैज, वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ दिस फिस्कल स्पेंडिंग? कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो वो कर सकती हैं? मैं आप हट को बोलूंगा, थोड़ा मेरे को आप क्षमा करिएगा कि पहला जो अलग है, मोहित ने जो बोला हेल्थ केयर का, वो तो हो गया, जो हो गया निकल गया. मेरा मानना है जो गरीब है, गरीब वर्ग में अभी जो आगे तकलीफ आने वाली है वो एजुकेशन की है, बच्चों की. तो जो मध्यम वर्ग है उससे ऊपर है, वहाँ पर तो ये ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग हो रही है. लेकिन जो गरीब वर्ग है वहाँ पर पढ़ाई में बहुत हुआ है. उसमें किसी तरह से, जैसे लोगों ने शुरू किया था, हंसिएगा मत की टैबलेट बांटना या कुछ करना, जिससे कि उनकी पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में, जो 5वीं क्लास से 11वीं क्लास तक है, उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना आए. तो पहला मेरा वो मानना है. और दूसरा, मैं जनरली बिलीव करता हूँ जैसे मनरेगा है, इस तरह की कुछ अर्बन एक स्कीम होनी चाहिए जो अर्बन पुअर के लिए, जिससे क्या कहते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और उनके हाथ में पैसा भी आएगा, जिससे खर्च पड़ेगा. 2 स्पेसिफिक आपको आइडिया दे रहा हूँ. Right, so that is Shashi Sinha's wish list. Let's take this across to Mr. Mohit Joshi. Mohit, again, 2 specific things, say 3 specific things that you are expecting from budget 2022, considering the limitations that Finance Minister Nirmala Sitharaman is working with in these times that we live in. So my first would be, to have more entrepreneurial friendly budget. So हमारा जो एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में, दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू. वहाँ बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं. एंड इन माय व्यू दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी बीन supporting the entrepreneurial and the startup ecosystem make in India, but the focus needs to go more in that direction. And the second I would say is jo environmental friendly industries हैं. For example, green industry है आपका,
EV industry है, जहां पर we should definitely get a lot of support from the government, because there currently is a very inverted tax structure that exists, where EVs are charged at just about 5% and battery packs are at 18%. So this is something which is again futuristic, because आज इसका impact नहीं पड़ेगा, लेकिन अगले 2-3 साल में इसका impact significant level पे पड़ेगा. तो in my view, these are the two things. While there are many more, but I think a more entrepreneurial friendly budget which allows more MSMEs to grow and the startup ecosystem to flourish more, and secondly invest in green energies and EV friendly and other such schemes. Mohit, can you be a bit more specific in terms of इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्रीज? क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने ये देखा कि गवर्नमेंट ने टैक्स भी कम किया, कॉर्पोरेट टैक्स की रेट भी कम की, टैक्स क्रेडिट भी इंडिया में कम हुआ, इंडिया में इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम हुए. उसके बाद भी हमने उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ट्रांसलेट होते हुए नहीं देखा, हमने उतना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं देखा. तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो डिबेट है, ये डिबेट इंसेंटिव ड्रिवन है या डिमांड ड्रिवन है? अब बाजार में डिमांड होगी तब इन्वेस्टमेंट आएगा, या डिमांड लाने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट किया जाएगा? ये पहली बहुत जगह से घूम रही है हमारे सामने कि सरकार पहले इंडस्ट्री को पैसा लगा देना चाहिए, लोगों के हाथ में तनख्वाह रख देनी चाहिए, फिर वो गाड़ियां खरीदना शुरू करेंगे, या पहले उनके हाथ में पैसा पहुंचे फिर वो गाड़ियां खरीदना शुरू करेंगे, फिर इंडस्ट्री पीछे से अपना इन्वेस्टमेंट करेगी? सर ये तो चिकन एंड एग स्टोरी है ऑब्वियसली. अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम जिस समय ये सब इवेल्युएट कर रहे हैं वो नॉर्मल इन्वायरमेंट था नहीं. We thought that after the first wave, when the first set of boosters came from the government, we thought that things will get better. But unfortunately, then the second wave happened, and many other things happened. So the constants were not constant. जो कहते हैं बाकी सब चीजें सिट्रस पैराबल्स होना चाहिए फॉर एन इक्वेशन टू वर्क, वो यहाँ पर थे नहीं, बिकॉज थिंग्स हैव बीन कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग. सो इन माय व्यू, when I say the budget should be more friendly towards the entrepreneurs, I think the ease of doing business is what I'm talking about. Even today, if I talk to the entrepreneurs, the ease of doing business is something that they complain about, and there are many ways of doing it. I don't want to get into specifics, but at an overall level, if there are policies that are made to ensure that the ease of doing business is improved, right, that will ensure that there will be more startups that will come in, right? The maturity of the startups will also be better, and once the startup ecosystem grows, there is wealth that is created in the industry. Right. Sandeep, quickly, if we can get your wish list as well. Your 2 or 3 specific tangible things that you are expecting from budget 2022. Yeah, I think I have really understood 2 fundamental really things which can really work a lot. कहते ना 100 सुनार की एक लोहार की, ये उस तरह का है. तो 2 चीजें हैं. एक, जॉब क्रिएशन. ये जॉब क्रिएशन हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहा है, लेकिन अब क्लियर है कि जॉब कहाँ पे है. रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन सेंटर है. तो यहाँ पे मैस हाउसिंग, लो कॉस्ट हाउसिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे अगर और ध्यान दिया जाए तो इससे एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलती है. और इससे अलाइड इंडस्ट्रीज जैसे सैनिटरी वेयर है, सीमेंट है, स्टील है, मेटल है, ये पूरे सेक्टर को एक कैस्केडिंग इफेक्ट मिलता है. तो ये बहुत क्रिटिकल है कि भाई इस सेक्टर को एक फोकस देके कुछ ऐसा डिसरप्टिव दिया जाए जिससे कि वाकई जॉब क्रिएशन हो, लोगों के हाथ नौकरी मिले लोगों को, और उनके पास अपना घर चलाने का व्यवस्था हो. और दूसरा कि लोगों के हाथ में पैसा, अपन जैसे पहले बात की थी, बट पैसा आएगा कहाँ से? अगर जॉब्स नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट को बहुत हैवी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी. कि 3% ऑफ जीडीपी की जगह एक बोल्ड मूव लेके गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा एक स्टैंड. और इसमें मेरा, आपने पहले जो क्वेश्चन पूछा चिकन एंड एग वाला, इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ कि पहले गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा, फिर वो पैसा जाके लोगों के हाथ में आएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और फिर जाके कंजम्पशन बढ़ेगा. तो गवर्नमेंट कर रहा है, वही पाथ पे है. लास्ट बजट भी उसी पे फोकस किया है, उसको और कंटिन्यू किया जाए इस बजट में. और ये बहुत क्रिटिकल है कि गवर्नमेंट स्पेंड करे हेवीली ताकि पैसा आए लोगों के हाथ में. राइट. तो अब हम आ गए अपने लिंक थिंग्स है, जैसे कि ये फिस्कल डेफिसिट और बैलेंसिंग ऑल दैट इज व्हाट कीप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग एबल टू स्पेंड मोर. बट ये एलआईसी का जो आईपीओ निकालना है, या बीपीसीएल का जो है, या शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो भी ये डाइवेस्टमेंट थे, जैसे एयर इंडिया का किया इन्होंने, इनको अब बस नेक्स्ट 2-3 मंथ में रियली
They should accelerate this, get the money, ताकि गवर्नमेंट का बैलेंस शीट ठीक हो, then they can take that step कि भैया जाके अब चलो, अब पैसा हम स्पेंड करके लोगों के हाथ में डालेंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि इसको स्पीड अप किया जाए. Okay. All right. So with that, we've sort of covered all but exactly one thing left, Anshumanji, and that is, of course, the question of media. Yes. And companies in the media space, who are approaching this brave new post-corona world, post-COVID world, and for them there is a budget that's going to set the tone for it, and that is budget 2022, setting the tone for the year ahead, where we are hoping that COVID will, one way or the other, it's either endemic, we learn to live with it. It's not what it was in 2020, 2021. So in that future, how in that context, how do you see the media space changing in terms of the way the money that is invested, the money that is that is put into the space? How do you see the way those patterns changing in the post-corona world, Anshuman ji? Yeah. आखिरी सेगमेंट में कृष्णा, हमारे पास मीडिया एक्सपर्ट हैं और इस पैनल से जो सबसे ज़रूरी सवाल है समझने के लिए कि पिछले 2 साल में भारत में मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स में भी, लोगों की मीडिया कंज्यूम करने की आदतों में भी बड़ा चेंज आया. उदाहरण के लिए हमने देखा कि नेटफ्लिक्स कोविड की शुरुआत में भारत में सबसे बुलिश था और कोविड के निकलते निकलते नेटफ्लिक्स के सीईओ को कहना पड़ा कि इंडिया ने उनको निराश किया है. तो हमने 2 अलग अलग पैटर्न्स देखे एक पीरियड के भीतर. इसके साथ ही डिजिटल मीडिया का कंजम्पशन, न्यूज़ मीडिया का कंजम्पशन, इंटरटेनमेंट का कंजम्पशन, इनके पैटर्न्स भी बदले, लोगों की हैबिट्स भी बदली पिछले 2 साल के भीतर. तो मेरा पहला सवाल शशि जी से होगा कि अब जब हम लग रहा है कि हम थर्ड वेव से बाहर निकल रहे हैं, इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जा रही है, हाउ डू यू सी कि media space and media consumption space will take shape after when we come out from this pandemic driven recession? देखिए जी, ये मेरी उम्र में अगर मैं ये ना बोलूं कि भाई डिजिटल इज डूइंग वेल और उसका बड़ापन होगा, वो तो ओल्ड फैशन. Shashi ji, why are we talking about Umar? Why are we let's No, I'm saying it's fashionable to say digital, and definitely digital is very personalized, and it is ऐसा एक मीडियम है जो because of personalization और content, जैसा आपने बोला, content आ रहा है. और मैं कुछ और कहने वाला हूँ, और आई नो मेरे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे डैड यू अनकूल, तो आता नहीं है. मेरा मानना है टीवी में भी बहुत दम है, बहुत जूस है, और मैं बहुत सारे रीजन से बोलता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. भैया कहना है कि मास मीडियम है, कंटेंट की कॉस्ट कंट्रोल्ड है. जैसे आपने नेटफ्लिक्स का उदाहरण दिया, उनके सीईओ ने जो कहा, क्योंकि अभी तो सब कंटेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मोड में सब लगे हुए हैं कंटेंट बढ़ाने में, और डिजिटल का फायदा ये है कि ओटीटी का की पर्सनलाइजेशन है. बट कभी ना कभी लोग सवाल पूछेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के. जब प्रॉफिटेबिलिटी सवाल आएंगे तो टीवी कहीं नहीं जाने वाला. मेरे होते हुए तो ये रहेगा यहाँ पर. ये सवाल आपने किया वो एक अलग बजट से रिलेटेड नहीं है, पर आप लोग में दम है कि सरकार से बोले कि जो छूट मिली हुई है डिजिटल में, कुछ भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, अगर वो टीवी को दें या उनको रिस्ट्रिक्ट करें, तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सब अपना आप ठीक हो जाएगा. देखिएगा. वेरी ट्रू. तो मोहित, मास वर्सेस पर्सनलाइजेशन, mass media versus personal media, TV in your drawing room and TV in at your palm like your smartphone is a smart TV. Yeah. Which side do you stand? सर, मैं अगर पर्सनल लेवल पे बोलोगे पर्सनलाइज्ड मीडिया में, लेकिन अगर आप मुझे आंसर बोलोगे तो आई समवेयर अग्री विद व्हाट शशि सर इज सेइंग. दोनों India always are two, right? There is always a Bharat and there is always an India, which is why there will be a personalized TV as well as a mass TV. So अभी जैसे शशि सर कह रहे हैं, मास टेलीविजन का भी पोटेंशियल बहुत हाई है, और हमसे क्लाइंट्स बोलते हैं कि केवल डिजिटल में लॉन्च करो. तो मैं क्लाइंट से पूछता हूँ, भाई ऐसी ब्रांड बता दो जो केवल डिजिटल में लॉन्च हुई हो, जिसने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया हो. सो अगर आप मुझसे कहेंगे डिजिटल की इंपॉर्टेंस है एक सेगमेंट में, और वो कस्टमाइजेशन और कस्टमाइज मीडिया, ओटीटी, कनेक्टेड टीवी चलेगा. लेकिन एक भारत है, और जो जो सेकंड इंडिया है, वहां पर अभी भी मास टेलीविजन की बहुत इंपॉर्टेंस है. और एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-6 years we are not going to see TV going away anywhere from the overall scheme. All right, fair enough. लेकिन संदीप जी, if I want to take this discussion forward with you, ये तो मेटावर्स का जमाना है.
Forget TV, digital, social media. We're into the metaverse. So how do you see the media space, bracing itself for all the innovation and technology is going to offer going forward? See, personally, I believe there's going to be a huge change in the way we consume media, and I'm already seeing it. For example, हमारे घर में DTH बहुत पहले निकल गया था और OTT वगैरह प्लेटफॉर्म और उसी पे TV और न्यूज़ सब देखना has become a trend, and everywhere around me most people have migrated to that. But having said that, India is beyond metros. To be two screens are going to be critical. अब big screen जो है ना वो टेलीविजन हो गया है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लार्ज साइज टीवी बिके हैं. आजकल जो भी खरीदता है बड़ी टीवी खरीदता है. तो बिग स्क्रीन आप थिएटर नहीं है, बिग स्क्रीन अब आपका टेलीविजन हो गया है और स्मॉल स्क्रीन है आपका मोबाइल. अब मेरा लड़का है वो टीवी देख रहा है, फुटबॉल या कुछ न्यूज या कुछ और देख रहा है और साथ साथ मोबाइल पे भी लगा हुआ है और यहाँ लैपटॉप पे भी कुछ चल रहा है उसका. तो यंगस्टर्स तो आजकल मल्टी फॉर्मेट पे रहते हैं. वो अपने ऐसे नहीं है कि अपन एक चीज देख रहे हैं तो वी आर ओनली ग्लूड टू दैट एंड वी आर वाचिंग टीवी और वी आर इनटू मोबाइल. मोस्ट ऑफ दिस यंग पीपल आर इनटू मल्टीपल लेवल ऑफ कंजम्पशन. मेरे हिसाब से टीवी और कंजम्पशन थ्रू मोबाइल, ये दो आर गोइंग टू रियली डोमिनेट गोइंग फॉरवर्ड. तो इसके अंदर जो कंटेंट प्रॉपर्ली दे पाएगा, कन्वर्ज कर पाएगा, somewhere if you can synergize those, that media is really going to flourish going forward. That's the न्यूज word. आजकल क्या आप न्यूज आप देखते हो टीवी पे, पर न्यूज आपके व्हाट्सएप पे आ जाती है, ट्विटर पे न्यूज आ जाती है. आजकल तो इमीडिएट का टाइम है. तो दोनों को सिनर्जाइज करके आगे चल के मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर जो है वो आजकल ये दो मीडियम पे मेरे हिसाब से दो स्क्रीन के ऊपर रहने वाला है आगे चल के. Right. So that's the word, synergize and energize. That's the word that Yes. We're going to end this discussion with, Anshuman ji, isn't it? So before we wrap up and say thanks to our guest, मैं बता दूं कि हमारे डिस्कशन में तीनों पैनलिस्ट का मानना है कि इकोनॉमी का मैक्रो मैनेजमेंट अच्छा था. माइक्रो लेवल पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, खासतौर से स्टेट और नीचे के लेवल पर. कंजम्पशन एक चैलेंज है जिसके लिए सरकारों को जो अभी तक वो करती रही उससे काफ़ी अलग हटकर कुछ नया करना पड़ेगा, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसे पहुंचे और डिमांड बढ़े. और हमारा पैनल इस बात पर डिवाइडेड है कि हम मास मीडिया के एज में जा रहे हैं, पर्सनलाइज मीडिया के एज में जा रहे हैं, मेटा मीडिया के एज में जा रहे हैं. So with this note, over to Krishna. That's right. That's a wrap here from our side. We're going to thank Mr. Shashi Sinha, Mr. Sandeep Sharma, and Mr. Mohit Joshi for joining us on this wonderful discussion as we look ahead to Budget 2022. Thank you, gentlemen, for being with us. Thank you, Anshuman ji, for joining us. And thank you, all of you, for watching this telecast from TV9 Network. Stay with the TV9 Network for all the latest on Budget 2022, on Budget Day and post-budget analysis as well. Thank you for watching. This is Krishna Kumar signing off. Thank you.